السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو الیکٹرک فوکس۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے الیکٹریکل سسٹم میں استعمال ہونے والے جو پاور فارمولاز ہیں وہ کون سا فارمولا کہاں پر ویلڈ رہتا ہے، یعنی کہ کون سے فارمولاز کی کیا لمیٹیشن ہے، اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ تو الیکٹریکل سسٹم میں ہمارے پاس جو مین فارمولاز یوز ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس ہے P=VI۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اس پاور کے ڈرائیو کیے گئے فارمولاز ہیں وہ یہ ہوتے ہیں P=V²/R۔ اس کے علاوہ P=I²R۔ اکثر یہ سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے کہ کون سا فارمولا کہاں پہ ویلڈ ہوتا ہے یا ان تینوں فارمولاز میں ڈفرینس کیا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں یہ جو پاور کے ڈفرینٹ فارمولاز ہیں ان میں سے جو مین فارمولا ہے وہ یہی مین فارمولا ہے جو فرسٹ والا ہے۔ پاور ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے کسی بھی لمحہ پر آپ سرکٹ جس ڈیوائس کی آپ نے پاور فائنڈ کرنی ہے اس کے وولٹیج کتنے ہیں اور اسی لمحے اس میں سے کرنٹ کتنی فلو کر رہی ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی سسٹم ہے یعنی لیمپ لگا ہوا ہے آپ کے پاس، ایک سپلائی سورس ہے آپ کے پاس، تو اس کی اگر آپ نے پاور فائنڈ کرنی ہے کہ اس لیمپ کی پاور کتنی ہے تو آپ فائنڈ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ اس سرکٹ میں جو وولٹیج کتنے اپلائی کیے گئے ہیں، اس کے علاوہ دیکھیں کہ اس سرکٹ میں کرنٹ کتنی فلو کر رہی ہے۔ تو آپ اس طریقے سے کسی بھی سسٹم کی پاور فائنڈ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ کوئی بھی چیز لگی ہے، جو پاور کے فارمولا سارے یہ ڈی سی سسٹم پہ یوز ہونے والے فارمولاز ہیں، ان کو آپ اے سی سسٹم پہ یوز نہیں کر سکتے۔ اے سی سسٹم پہ اگر آپ کو یوز کرنا ہے تو اس کے لیے لمٹ یہ ہے کہ اگر آپ کا جو اے سی سسٹم ہے اس میں آپ کا لوڈ ہے وہ پیور ریزسٹیو ہو، نہ تو وہ انڈکٹیو ہو نہ وہ کیپیسٹیو ہو، تو وہاں پہ یہ فارمولاز ویلڈ ہیں۔ اس کے علاوہ پاور کو فائنڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ایک اور فارمولا یوز کیا جاتا ہے P=VI cos∅۔ یہ ہمارے پاس جو پاور کا فارمولا ہے یہ صرف اے سی سسٹم پہ ویلڈ ہے، کیونکہ ڈی سی سسٹم میں یہ جو فیکٹر ہے cos∅ والا یہ نہیں ہوتا۔ تو یہ دیکھیں یہ دو ٹرم تو بالکل سیم ہے، یہ جو اتنا فارمولا ہے اس کا، لیکن یہ فارمولا اے سی سسٹم کا ہے تو اس میں ایک نئی ساتھ شامل ہو گئی، وہ ہے cos∅۔ cos∅ کو ہم کہتے ہیں ہمارا ہے پاور فیکٹر PF۔ اے سی سسٹم میں کرنٹ اور وولٹیج دونوں فلو کرتے ہیں، یعنی کہ ہمارے پاس فرض کریں یہ ایک سائن ویو ہے، تو یہ ہمارے پاس ایک ویو ہے جو کہ ہے وولٹیج کی۔ ایک پوٹینشیل ڈفرینس ہوتا ہے، یہ ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے جو کسی سسٹم میں چارجز کو فلو کرواتی ہے۔ تو ان وولٹیج کی وجہ سے سسٹم میں کوئی کرنٹ فلو کرے گا، اگر تو وہ کرنٹ فلو کر رہا ہے بالکل سیم اسی پیٹرن پہ، تو یہ ہمارے پاس جو اس کیس میں جو پاور کا فیکٹر ہے، یعنی کس فیکٹر سے پاور سرکٹ میں ٹرانسفر ہو رہی ہے، وہ ہمارے پاس ہوتا ہے 0۔ اگر آپ کی سائن ویو میں وولٹیج کی ویو اور کرنٹ کی ویو ایک ساتھ شروع ہو رہی ہیں تو آپ کا جو پاور فیکٹر ہے وہ یونٹی ہوگا، یعنی cos∅ 0 ہوگا۔ تو cos 0 کیا ہوتا ہے ہمارے پاس، تو 1 پاور فیکٹر کسی بھی یہ جو اس کی ویلیو ہے، یعنی اگر اس میں کوئی کیپیسٹر ایڈ اپ نے کر دیا ہے، میں وولٹیج اور کرنٹ ایک دوسرے سے بالکل ساتھ نہیں چلتے۔ اگر آپ انڈکٹیو سرکٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں تو انڈکٹیو سرکٹ میں ہمارے پاس کیا ہوگا، جو ہمارے پاس جو سرکٹ میں جو کرنٹ ہے وہ وولٹیج سے 90 درجے پیچھے لیگ کرتی ہے، یعنی کہ 90 ڈگری اس سے آؤٹ آف فیز ہوگی۔ پہلے کیس میں دیکھیں یہ ہمارے پاس تب تھا، یہ ہمارے پاس جب سسٹم ہمارا پیور ریزسٹیو تھا، یعنی اس میں کوئی انڈکٹر اور کیپیسٹر شامل نہیں تھا۔ اس کیس میں ہمارے پاس پاور فیکٹر یونٹی ہوتا ہے، یعنی cos∅ کی ویلیو 0 ہوتی ہے، یعنی جب آپ کا کرنٹ وولٹیج شروع ہوتے ہیں اسی سیم پوائنٹ پہ آپ کی کرنٹ بھی سرکٹ میں فلو کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے، اور جو ہی وہ اپنی میکسیمم ویلیو کو اچیو کر کے 0 پوائنٹ پہ پہنچتی ہے تو 0 پوائنٹ پہ ساتھ ہی اس کا جو کرنٹ ہے وہ بھی 0 پوائنٹ پہ پہنچ جاتا ہے۔ اگر ہمارے پاس یہ ویو فارم ہے ہماری جو کرنٹ کی، یعنی یہ وہ جو ہماری کرنٹ کی ویو فارم ہے، یعنی اس کی یہ 0 پوائنٹ ہے، 0 پوزیشن ہے اس کی، یہ اس کی میکسیمم پوزیشن ہے، یعنی کہ اس 90 پہ پہنچ گیا ہے، اس کے بعد یہ 0 پہ۔ ایسے سرکٹ میں ہمارے پاس جو وولٹیج لیڈ کرتے ہیں، یعنی ایسے سرکٹ میں جو ہوتے ہیں 90 ڈگری لیڈ کر وولٹیج لیڈ کریں تو اس کا مطلب جو کرنٹ ہے وہ لیگ کرے، لیگ کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پیچھے رہ جانا، یعنی کرنٹ بعد میں شروع ہوتی ہے جب وولٹیج ہمارے اسٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ یعنی دیکھیں جب کرنٹ کی ویلیو 0 ہے تو اس مقام پہ کیا ہوگا، وولٹیج میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ وولٹیج 90 ڈگری لیڈ کریں گے، تو لیڈ کا مطلب کیا ہے، جب اس کی ویلیو 0 ہے تو ہمارے پاس اس کی جو ویلیو ہے وولٹیج کی وہ کیا ہوگی، تب 90 ہوگی، یعنی کہ یہ یہاں پہ کچھ ٹائم کے بعد، یہ اگر ٹائم ایکسس ہے تو کتنے ٹائم کے بعد، یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ٹائم ایکسس اگر ہے، یہ لائن سیدھی بالکل ٹائم ایکسس یہ ہے، تو جب یہ کرنٹ کی جو اس کی جو 0 پوائنٹ ہے، 0 ٹائم پہ وولٹیج ہمارے پاس ہوں گے میکسیمم، یعنی کہ 90 ڈگری اس کی ویلیو ہوگی، لیکن جب اس کی ہمارے پاس پہنچتی ہے 90 ڈگری تو وولٹیج ہمارے پاس یہاں دیتے جا کے 0 وولٹ ہے۔ تو اس طرح یہ 90 ڈگری آؤٹ آف فیز چلتے ہیں سارے، یعنی اس کی میکسیمم جب آئی تو دیکھیں یہ اس طرح سے اس کی ویو فارم بنے گی، اس طرح سے اور جب یہ اینڈ دیکھیں اس کا، جب میکسیمم جو ویلیو ہے نا، یہ پازیٹیو ویلیو اس میں ہوتی ہے وولٹیج کی، کرنٹ کی بات کریں یہ نیگیٹو کرنٹ، اس سائڈ پہ پازیٹیو کرنٹ ہوگا، دوسری سائڈ پہ یہ نیگیٹو کرنٹ ہوگا۔ اگر ہم بات کرتے ہیں ایک کیپیسٹیو سرکٹ کی، تو کیپیسٹیو سرکٹ میں کیا ہوتا ہے، کیپیسٹیو سرکٹ کو ہم سی سے ظاہر کرتے ہیں، کیپیسٹر یعنی کہ سی سے ظاہر کرتے ہیں۔ ایک کیپیسٹیو سرکٹ میں ہوتا ہے یہی، اگر اس طرح ہی ویو فارم ڈرا کریں، یہ ہمارے پاس ٹائم ایکسس ہے اور یہ ہمارے پاس ایک سائنوسوئڈ ہے۔
तो कैपेसिटिव सर्किट करंट इसमें आगे होती है, जिसमें देखें इसमें करंट पीछे थी, यानी जब वोल्टेज हमारे पास ये पॉइंट था वोल्टेज का, वोल्टेज की जो वेव है ये जब 90 पे थी तब करंट की वैल्यू क्या थी 0। लेकिन इस सर्किट में बिल्कुल केस उल्ट होता है, इसमें जो हमारे पास करंट है वो लीड करती है, यानी करंट की वैल्यू यहाँ से इस करंट की वेव फॉर्म इस तरह से बनेगी कुछ। इसमें जब करंट की वैल्यू 90 डिग्री है यानी कि मैक्सिमम वैल्यू है, उस पॉइंट पे हमारे पास वोल्टेज क्या है 0। जो ही वोल्टेज है कि 90 वैल्यू पहुंची यानी कि हाईएस्ट वैल्यू पहुंची, करंट की उस वक्त क्या होगी वैल्यू 0 हो गई। इस तरह सेम ये प्रोसेस बिल्कुल इसके उल्ट होता है, ये लीड करेगा जब वोल्टेज, फिर भी हमारे लिए सर्किट में पावर का लॉस होगा, और जब लैग करेगा फिर भी हमारे पास जो पावर का लॉस होगा। इस केस में देखें कोई पावर का लॉस नहीं होगा, जब हमारे पास करंट की वेव फॉर्म स्टार्ट हो रही है सेम उसी टाइम पे वोल्टेज की वेव फॉर्म भी स्टार्ट हो रही है, जब एंड होती है जाके दोनों वेव फॉर्म इकट्ठी एक पॉइंट पे जाके एंड होती हैं। तो ये जो हमारे पास जो फैक्टर था ये एसी सिस्टम में मौजूद होता है, डीसी सिस्टम इसका कोई किरदार नहीं होता, क्योंकि जो डीसी सिस्टम होता है उसकी हमारे पास जो वोल्टेज जो करंट की वेव हम इस तरह ये नहीं शो करते हैं, हम एक स्ट्रेट लाइन लगाते हैं, इसके जो डीसी सिस्टम है उसके बाद ऊपर डॉट डॉट लगाते हैं इस तरह। डीसी सिस्टम में जो ये टाइम एक्सिस अगर हो गया ये टाइम, तो ये हमारे पास ये डीसी सिस्टम है, इसमें करंट और वोल्टेज को इस तरह से ज़ाहिर करते हैं। अगर ये करंट है तो इसे आई से ज़ाहिर कर देंगे, अगर वोल्टेज तो वी से ज़ाहिर कर देंगे। इसमें कोई साइनोसॉइडल नहीं होती, एक ही वक्त में करंट और वोल्टेज स्टार्ट होते हैं, इसमें कोई लैग और लीड का कॉन्सेप्ट नहीं होता। यही वजह है कि हम ये जो फार्मूलाज हैं, ये पावर के 3 जो फार्मूला मैंने बताए हैं, ये पी इक्वल टू वी आई वाला, पी इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये तीनों फार्मूलाज तब तक वैलिड है सिस्टम पे जब तक हमारी सर्किट की कंडीशन ये है, यानी जब तक हमारा सर्किट जो है प्योर हमारे पास रेजिस्टिव होता है, यानी इसमें फेज डिफरेंस कोई नहीं होता, कॉस फाई वहाँ 0 होता है। तो लेकिन जो ही हमारे पास सर्किट में जो इफेक्ट आता है कैपेसिटर की वजह से और इंडक्टर की वजह से सर्किट में फेज डिफरेंस का, इसे हम कहते हैं फेज डिफरेंस, यानी कि आउट ऑफ फेज होंगे। जो ही फेज डिफरेंस आएगा हमारे ये जो फार्मूलाज हैं इनकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, तब हमारे पास पावर के नए फार्मूलाज आएंगे, जो कि देखें पावर का फार्मूला है पी इक्वल टू वी आई। अब जितना एंगल होगा हमारे पास, अगर 90 डिग्री है तो कॉस फाई की वैल्यू यहाँ पे 90 लगाने से देखें कॉस 90 हमारे पास होता है 0। तो कॉस 90 जब 0 होगा तो ये टोटल जो सर्किट की पावर है ये 0 इससे मल्टीप्लाई करके ये 0 है, जहाँ पे जो मर्जी वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा हमारा टोटल जो आंसर आएगा पावर का वो हो जाएगा 0। तो इस तरह जो पावर की जो एक्चुअल जो सही वर्क है वो 0 रहता है, इसमें पावर बिल्कुल ज़ाया हो जाती है सिस्टम में, कोई जो आपकी जो पावर है जो आपकी प्रॉपर वर्क कर रही है वो आपकी यूज़फुल पावर ख़त्म हो जाती है, और सारा का सारा इसमें लॉस होता है सर्किट में। तो इनको बाद जो है इसको इम्प्रूव भी करते हैं पावर फैक्टर को, एक लीडिंग है एक लैगिंग है। लैग कहते हैं किसी चीज़ का पीछे रह जाना, और लीड कहते हैं किसी चीज़ का आगे निकल जाना। इस सर्किट में देखें वोल्टेज जो हैं वो लैग कर रहे हैं बिहाइंड करंट, यानी कि अगर ये करंट की वेव फॉर्म है तो क्या हो रहा है इसमें कैपेसिटिव सर्किट में करंट हमारे पास क्या कर रहा है लीड कर रहा है, क्योंकि ये देखें वोल्टेज यहाँ पे 0 है, करंट मैक्सिमम है, तो इसमें क्या कर रहा है वोल्टेज लैग कर रहे हैं करंट लीड कर रहा है। अगर दूसरे मानों में बात करें इस तरह, इसमें जो वोल्टेज है लैग कर रहे हैं करंट लीड कर रहा है। तो इस तरह इंडक्टर में भी उसके उल्ट है, जो इसमें हमारे पास वोल्टेज लीड कर रहे हैं करंट लैग कर रहा है, इस तरह इसमें दोनों बिल्कुल एक पॉइंट पे चलते हैं, एक पॉइंट पे जाके एंड हो जाते हैं सारे। तो ये एक इंट्रोडक्शन था जो हमारा कॉस फाई का। इसके अलावा जो और देखें अगर, तो ये तो सारी बात थी कि एसी सिस्टम में कौन से फार्मूलाज यूज़ किए जाते हैं और डीसी सिस्टम में कौन से फार्मूला यूज़ किए जाते हैं, इन चारों फार्मूला फ़र्क है, इनकी वैलिडिटी मैंने आपको बताई है। अब बात करते हैं कि जो हमारा ये फार्मूला है ये है सिर्फ सिंगल फेज़ के लिए। अगर ये सिंगल फेज़ पावर है, क्योंकि हमारी जो भाई मेन जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो पावर इस्तेमाल हो रही है वो 3 फेज़ सिस्टम है। अगर 3 फेज़ सिस्टम है आपका तो उसके लिए ये फार्मूला वैलिड नहीं होगा, ये सिर्फ एसी सिंगल फेज़ के लिए फार्मूला वैलिड है। लेकिन ये जो मैंने आपको बताई पावर फैक्टर वाली जो सारी बात है ये 3 फेज़ में भी सेम वही होती है, और सिंगल फेज़ में भी 3 फेज़ में भी इस तरह ही आउट ऑफ फेज़ होते हैं, क्योंकि फ़र्क सिर्फ सिंगल फेज़ में और 3 फेज़ में ये होता है कि अगर इसमें एक फेज़ है और ये हमारे पास दूसरा न्यूट्रल है। अगर 3 फेज़ की बात करते हैं उसमें 3 हमारे पास फेज़ होते हैं, जिस तरह आप देखें अपने गली मोहल्लों में जिस तरह होती है हमारे पास वायर, इसमें जो 3 ऊपर वाली वायर होती हैं ये फेजेस होते हैं हमारे, इसको हम रेड कह लेते हैं, येलो कह लेते हैं, ब्लू, 3 फेज़ कह लेते हैं। इसके अलावा ये हमारा न्यूट्रल होता है। आपके जो घर का जो कनेक्शन होता है वो किसी भी एक फेज़ से और उसके बाद एक न्यूट्रल, यानी कि ये सबका कॉमन होगा। न्यूट्रल पॉइंट जो होगा हर जो आपका डोमेस्टिक लेवल में जो भी या किसी भी पॉइंट पर आप यूज़ करें सिंगल फेज़ पावर, तो ये पॉइंट तो आपको मस्ट लेना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको फेज़ कोई भी एक यहाँ से ले सकते हैं, तीनों में से एक ही आपको एक ही पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्टेज मिलता है, यानी 220 वोल्ट है तो 220 ही मिलेंगे तीनों फेज़ों में से, यानी ये और ये। इसके अलावा एक और टर्म यूज़ होती है लाइन करंट और फेज़ करंट। फेज़ करंट हमारे पास होती है किसी भी एक फेज़ और न्यूट्रल के दरमियान जो हमारा करंट होता है वो हमारी होती है फेज़ करंट। और लाइन करंट क्या होती है हमारी लाइन टू लाइन, यानी कि ये हमारी लाइव वायर होती है ना, क्योंकि ये लाइव है, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3, और ये न्यूट्रल होती है। लाइव वायर या लाइन एक कह लें, लाइन टू लाइन अगर इसके वोल्टेज की हम बात करें, यानी कि इसके और इसके रेड येलो के वोल्टेज दिए होंगे लाइन टू लाइन वोल्टेज। इसके अगर करंट की बात करें तो लाइन टू लाइन करंट हो जाएगी। इसके अलावा अगर किसी भी एक फेज़ और न्यूट्रल की बात करें, कोई भी एक फेज़ लें रेड येलो ब्लू, तो न्यूट्रल के दरमियान अगर आप करंट या वोल्टेज की बात करें तो वो हमारा
हमारा होगा फेज़ करंट। तो ये लाइन करंट और फेज़ करंट का थोड़ा डिफरेंस था। ये भी बहुत जनरल टर्म है, लेकिन इसमें भी अक्सर स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है, तो आप इससे भी रिमेंबर कर लें। इसके अलावा पावर फैक्टर की बात कर ली, पावर के जो फार्मूलाज हैं। अगर 3 फेज सिस्टम की बात करें तो सिर्फ आपको फार्मूला में चेंजिंग करनी है, यहाँ पे आपको √3 एक ऐड करना है बस। √3 का मतलब क्या है कि आपका सिस्टम 3 फेज़ है। अगर √1 कहते हैं तो √1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका वन हमारा आंसर 1 ही होता है। तो ये सिंगल फेज़ के लिए √1 होता है, 3 फेज़ के लिए √3 होता है। √1 की वैल्यू 1 है, उसे लिखना नहीं पड़ता साथ, वो वैसे ही 1 होता है, तो 1 इफेक्ट नहीं करता किसी चीज़ पे, लेकिन √3 आपको लिखना पड़ता है। इसके अलावा ये जो 3 फार्मूलाज हैं, ये एक डीसी सिस्टम की बात करें, ये जो तीनों फार्मूलाज हैं, तो इनकी कौन सा फार्मूला कहाँ पे यूज़ होता है, ये थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे कि कौन से फार्मूले को हम कहाँ पे यूज़ करें। तो सबसे पहले देखें पावर के जो तीनों फार्मूला थे, P = VI, इसके अलावा जो P = I²R, इसके अलावा हमारा होता है P = V²/R। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, ये हमारा मेन फार्मूला है, बाकी फार्मूले इससे ड्राइव किए रहते हैं सारे। तो अगर हमारे पास इसमें टोटल देखें 4 हमारे पास टोटल चीज़ें यूज़ हो रही हैं। पहली तो एक पावर, जो कि तीनों में है, क्योंकि ये पावर के फार्मूलाज हैं, सारे पावर फाइंड करने के फार्मूलाज हैं, तो पावर तो सब में मौजूद होगी तीनों फार्मूलाज में। इसके अलावा हमारे पास एक वोल्टेज है, एक करंट का फैक्टर है और एक रेजिस्टेंस का है। यानी हमारे पास सिस्टम में टोटल 4 चीज़ें हैं, एक पावर, दूसरी वोल्टेज, तीसरी हमारे पास करंट, चौथी हमारे पास है इसमें रेजिस्टेंस। इनके ये चारों चीज़ों का जो घुमा फिरा के बात करते हैं तीनों फार्मूलाज में, किसी में कोई चीज़ आपको दे दी जाती है तो आपने तीसरी चीज़ फाइंड करनी होती है, कोई 2 दे के तीसरी पूछ लेता है आपको। इनमें से कोई भी आपको 2 दे देगा, तीसरी आपसे वो पूछ सकता है क्वेश्चन के अंदर, तो आप इससे कन्फ्यूज़ ना होइएगा। ये सिर्फ 4 ही चीज़ें हैं मेन। तो एक और बात आप देखेंगे, किसी सिस्टम में अगर वोल्टेज मौजूद है तो वोल्टेज क्या होता है, जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, वोल्टेज सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस होता है। हर वायर जो होती हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ये जो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन को एक सीक्वेंस में चलाने के लिए आपको एक पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस आप उसे कहते हैं वोल्टेज। यानी एक प्रेशर होता है जो आप देते हैं इस इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन अलाइन होकर एक ख़ास रेंज में आके ये एक किसी सिस्टम में फ्लो करना शुरू कर देते हैं। अगर ये इस तरफ को पोटेंशियल आप देंगे, यानी कि यहाँ पे हायर पोटेंशियल देंगे, पॉजिटिव देंगे, यहाँ पे नेगेटिव देंगे, तो इनका फ्लो इस तरह से होगा, इनके पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। यानी कि हायर पॉजिटिव, इसका मतलब ये पोलैरिटी नहीं है, मैं शो कर रहा हूँ इधर के हायर पोटेंशियल और लो पोटेंशियल, हायर प्रेशर और लोअर प्रेशर। यानी कि यहाँ से प्रेशर देंगे, अगर जिस तरह आप पानी की मिसाल लें, अगर आपके एक ये हमारे पास वाटर टैंक है, तो वाटर का टैंक जो है, इसमें ये अगर आपकी फ्लोर पे छत पे पड़ा है आपको, तो छत से इस पानी का जो फ्लो है वो नीचे की तरफ ही होगा। यानी कि यहाँ पे प्रेशर क्या है, पानी का मैक्सिमम है, पानी तो वही है, नीचे आने के बाद इसका क्या हो जाता है, इसका प्रेशर 0 रहता है, कोई इसका प्रेशर नहीं रहता। यानी कि यहाँ पे आते आते ये प्रेशर को अपना सारा लूज़ कर देता है, आते आते नीचे जो इसके साथ टकराव करता है आगे। तो यह इसका मतलब ये था कि हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। जब आप इनको हाई पोटेंशियल देते हैं तो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को आप एक ख़ास लेवल पर थोड़ा ऊपर कर देते हैं, यानी कि उनका पोटेंशियल हाई कर देते हैं, और वो लो पोटेंशियल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो फ्लो ऑफ चार्जेस था या इलेक्ट्रॉन था, चार्जेस 2 तरह के होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस। दोनों जो किस्म के चार्जेस हैं उनमें किसी एक की बात कर ले आप, जो मैंने पहले आपको बताया था, इलेक्ट्रॉनिक करंट और कन्वेंशनल करंट। तो उस तरह कोई भी करंट है, उसमें फ्लो ऑफ जो चार्जेस हैं उसे हम कहते हैं करंट। यानी किसी भी पॉइंट पे आप चार्जेस को मेजर कर लें, कितने चार्जेस फ्लो करें, उसे हम कहेंगे करंट। करंट की वजह से, करंट किसकी वजह से होता है, वोल्टेज की वजह से। जो हमारे पास अक्सर ये भी क्वेश्चन करते हैं कि फ्रेंड्स को ये कन्फ्यूजन होती है कि कोई भी चीज़ है वो डैमेज होती है वोल्टेज की वजह से या करंट की वजह से। तो फ्रेंड्स, कोई भी जो चीज़ है, जो आपकी मोटर है, आपका लैंप है, वो उसके डैमेज होने की वजह होती है सिर्फ करंट। वोल्टेज इसमें कोई फैक्टर नहीं करता। वोल्टेज का सिर्फ मतलब क्या होता है, वोल्टेज होती है ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स यानी इलेक्ट्रॉन को ड्राइव करवाने वाली एक फोर्स है, जिसकी वजह से हमारा जो करंट सर्किट में चेंज होता है। तो कोई भी अगर फ़र्ज़ करें आप, एक मोटर है आपकी घर में लगी है, तो ये जो मोटर की कॉइल होती है इसके अंदर, और कॉइल में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। हर जो वायर है, जो कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम कहते हैं वोल्टेज। अगर जिस तरह आप देखें P सिंपल देखें, अगर P VI था, पावर इन दोनों का मल्टीपल होता है। और दूसरा जो ओहम लॉ की बात करें, I V/R। यानी ये जो इस केस में देखें, जो करंट है वो जो रेजिस्टेंस के इन्वर्स प्रोपोर्शन है। जब तक आपके करंट कम है, इसका मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा है, लेकिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए आप क्या करेंगे, वोल्टेज को चेंज कर देंगे।
अगर आप वोल्टेज बढ़ा देंगे तो इसका क्या होगा, जो करंट का जो ये जो इलेक्ट्रॉन थे मूव करने की स्पीड बढ़ जाएगी, इनका प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, इसमें बहुत ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेंगे, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करने से क्या होगा, इसमें हीट प्रोड्यूस होगी। हीट प्रोड्यूस होने से हमारे इस जो वायर है हमारी, इसकी इंसुलेशन ब्रेक हो जाती है। इंसुलेशन ब्रेक होने से आपस में कंडक्टर शॉर्ट सर्किट होते हैं, और हमारे पास क्या होता है, हम आपकी जो मोटर है या आपको कोई भी अप्लायंस है वो जल जाती है। चीज़ें सारी जलती हैं करंट की वजह से। वोल्टेज सिर्फ इस करंट की मिकदार को बढ़ाता है। रीज़न सिर्फ हमारे पास बनी है वोल्टेज, यानी कि रीजन जो वोल्टेज नहीं, वोल्टेज की वजह से ही हमारा जो ये इफेक्ट हुआ है, लेकिन जो चीज़ जली है हमारी वो करंट की वजह से जली, करंट के बढ़ने से। तो इस तरह अक्सर ये भी क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स कि हमारे पास फ़र्ज़ करें ये सॉकेट है, सप्लाई में इसमें एक फेज़ आ रहा है और ये न्यूट्रल है पीछे, यानी वायरिंग जिस तरह की मर्ज़ी है आपकी वायरिंग, उसमें स्विच से कंट्रोल है जो भी, यानी यहाँ के स्विच ऑन होने के बाद यहाँ पे अगर फेज़ और न्यूट्रल आ गया तो कहते हैं कि देखें इसमें जी कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट तो फ्लो तभी करेगा जब आप इस पर कोई लोड अटैच करेंगे। एक सिंपल सॉकेट पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होता, इस पर पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद होता है, यानी इसमें इतनी एबिलिटी है कि आप इस पर कोई भी चीज़ लगाएंगे तो उसमें से ये इलेक्ट्रॉन जो है मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अब कितने इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे वो डिपेंड करता है कि आपका लोड कैसा है। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैं एक लगाता हूँ, एक सिंपल एक लैंप लगाता हूँ 100 वाट का, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगी उसकी वैल्यू कुछ और होगी। लेकिन यहाँ पर अगर मैं फ़र्ज़ करें एक इलेक्ट्रिक आयरन लगा देता हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक आयरन की 2 वायर यहाँ पे उठा के इस तरह लगा देता हूँ इसके अंदर, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन मूव करवाने की जो तादाद है, इनके कितने इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे ज़्यादा होगी, क्योंकि इसकी पावर 100 वाट थी, इसकी पावर है 1000 वाट। इलेक्ट्रिक आयरन जो होती है नॉर्मल हमारे पास, उनकी पावर होती है 1000 वाट। तो इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, इसमें कम फ्लो करेंगे, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या होता है वो उतना ही है जितना इस केस में था। यानी ये जो डिवाइसेस हमारे पास डिज़ाइन की जाती हैं, इनमें टोटल जो पावर होता है पोटेंशियल डिफरेंस वो 220 वोल्ट ही रखा जाता है। इतने प्रेशर पे ये इलेक्ट्रॉन को मूव करवा सकती हैं इसके अंदर से। तो जो डिपेंडेंस सारी है किस पे, कि आपका लोड किस तरह है। जितना आपका लोड ज़्यादा होगा उतनी करंट ज़्यादा उसमें फ्लो करेगी, यानी उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। उसमें वोल्टेज जो है, इसमें कोई सॉकेट में आपको इस तरह से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होता, अक्सर ये कितने एम्पियर की है, कितना करंट फ्लो कर रहा है, इस तरह की कोई बात नहीं होती। करंट डिपेंड करता है सिर्फ जब आपका लोड अटैच होगा, यानी जब आपका पाथ क्लोज होगा, क्योंकि बात ही डेफिनेशन करंट की डेफिनेशन ये है कि फ्लो ऑफ चार्जेस। यहाँ पे तो आपका सर्किट ओपन है, कोई चार्जेस फ्लो करेंगे नहीं, तो करंट किस तरह होगा, चार्जेस फ्लो करेंगे तभी जब आप इस पर लोड अटैच करेंगे। तो ये फ्रेंड्स सिंपल सी इसकी थोड़ी मैंने डिटेल बताई आपको, और वो बात फिर हमारी कि कहाँ पे ये आप यूज़ करेंगे। अगर आपको रेजिस्टेंस दे दी जाती है किसी सर्किट में, क्वेश्चन आपको रेजिस्टेंस आपकी फ़र्ज़ करें 3 ओम है जी, और आपकी पावर जो है वो 4 वाट है, तो आपको कहा जाता है जी इसके वोल्टेज फाइंड करें, या आपको कहा जाता है इसकी करंट फाइंड करें। तो आप इसमें देखें आपको 2 चीज़ें नाउन है, नाउन चीज़ें आपको देखें पावर और रेजिस्टेंस है। तो देखें कौन सा ऐसा फार्मूला जिसमें पावर रेजिस्टेंस दोनों आपको मौजूद है, आपको दी गई हैं, जिसमें दोनों ये हमारे पास जो कोफिशिएंट है वो दोनों मौजूद हैं। इसके अलावा ये देखेंगे 2 चीज़ें आप कि कौन किस फार्मूले में दोनों मौजूद हैं। इसके अलावा देखेंगे आपको फाइंड क्या करना है। अगर आपको कहा जाता है वोल्टेज फाइंड करें, तो देखें ये तीनों चीज़ें हम किस में मौजूद हैं। 2 चीज़ें आपको नाउन है और एक अननाउन है। अननाउन क्या है, वोल्टेज आपका, और 2 नाउन चीज़ें कौन सी आपके पास, रेजिस्टेंस और पावर। हमारे पास टोटल चीज़ें कौन सी है, रेजिस्टेंस, पावर और वोल्टेज। इसमें देखें पहला अगर फार्मूला देखें, इसमें पावर है और उसके बाद हमारे पास वोल्टेज है, लेकिन जो तीसरा फैक्टर करंट का है इस पर रेजिस्टेंस नहीं है, यानी कि ये जो फार्मूला आपका ये तो यहाँ पे वैलिड नहीं होगा, ये आप नहीं यहाँ पे यूज़ कर सकते। अगर दूसरा फार्मूला देखें, इसमें हमारे पास पावर तो मौजूद है, इसके अलावा रेजिस्टेंस का फैक्टर भी मौजूद है, लेकिन इसमें जो तीसरा फैक्टर वोल्टेज का वो इसमें यूज़ ही नहीं हो रहा कहीं, तो ये फार्मूला भी यूज़ नहीं कर सकते। तीसरा फार्मूला देखें, इसमें तीनों चीज़ें हैं, पावर भी है, वोल्टेज भी है, रेजिस्टेंस है, यानी ये फार्मूला आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपने वोल्टेज फाइंड करना है तो आप इसको रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करेंगे आपको इस तरह V² इक्वल बन जाएगा हमारे पास PR, यानी ये फार्मूला लगा के आप इस सर्किट की जो पावर फाइंड कर सकते हैं, यानी वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। इसकी सिंपल आप अगर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर क्या होगा, √PR, इसकी वैल्यू डालें तो आपको वोल्टेज फाइंड हो जाएंगे। तो ये आप देखेंगे कि आपके नाउन कौन से हैं, अननाउन कौन से हैं, उसी हिसाब से आप इनमें से जो पावर का फार्मूला वो चूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको पावर फैक्टर के बारे में और जो आपकी अप्लाइंस किससे डैमेज होती हैं, इसके अलावा तीनों जो फार्मूलाज हैं कहाँ पे यूज़ होते हैं, इनकी लिमिटेशंस क्या हैं, तो ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगर आपको अभी भी किसी चीज़ के बारे में डाउट है, आप उसके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वो चीज़ लिखिए, मैं उसके बारे में आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगा। इसके अलावा अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है किसी भी पॉइंट पर, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि जो ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप कोई वीडियो मिस ना करें। तो तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।